students, welcome to another e-learning session. So today we are going to discuss about various properties of determinant. As students, in the last class we have discussed about determinant, what is determinant, how to find determinant, and minor, to find the minor, cofactor. So see students, as I have already discussed with you, the determinant is the most important part in solving a matrix. For solving a matrix, we have to use determinant to arrive at a solution, because according to the use of matrix, we have to solve linear equations. So to solving the linear equations, determinant is a way, we can say is a solution way that has to be followed for arriving at a solution. Okay. So in the last class we have learned that how to find the determinant, okay, of second order and third order matrices. Okay. As I hope all getting through the class and already have known and recognize that how to find the determinant in second and third order matrix. Okay. So see students, today we are going to discuss a new concept in determinant, that is the properties of determinant. The properties of determinant. Properties of determinant. As we know students, property means, what is property? Property are some extraordinary helpful tool. Those can be used to arrive at a solution in a very easy and limited time and limited effort. Okay. So as like that is the characteristics of the property, that everything if has any property, then using that property we can derive at a solution very quickly with less effort. Similarly, in the case of determinant also, we have some properties. Those can be used to derive at a solution or derive at a numeric value of determinant, that we call the value of a determinant. Clear? We can derive, we can resolve, we can find the determinant of a given matrix immediately with or quickly with less effort by using the properties, rather following the lengthy process, going through the continue process. We can solve, we can derive at a point, at a numerical value using those properties. Okay, clear students? So today in the class, this class, we are going to discuss all the properties of determinant point by point with the use of that property. How could we use those determinant properties? Okay, clear students? So first of all, I want to have a introduction about the property. Write down, determinant have a, that we say determinant have a good number of properties, which help us, in finding out,
A solution, finding out a solution, okay, solution of a numeric value, solution of a numeric value at an easy, at an easy, at an easy and straight, easy and straight way, easy and straight way, with less effort and time, with less effort and time, okay. So that is the characteristics of property. If we use some property, then we definitely, it save, the property save our time, our effort, clear, and we can derive the solution. The solution is also very significant, okay, very reliable and authentic, clear. That is, there is no other point that may be with using the property we may derive a solution that may be wrong, okay. There is no chance of that thing, clear students. So that is the use of property, okay. So by applying the property, or we, the properties are regularly used, the properties are regularly, the properties are regularly used to finding, or to find solution to find solution to determinant without practicing more process, clear, without practicing or following more process, that we have discussed in the last class. To find the determinant in case of second order matrix is very simple, just multiplying the two diagonal and subtracting diagonal 1, diagonal 2, clear. But in the case of third order matrix, it is a quite lengthy process, clear. So without going through the lengthy process, we can derive the solution with a very just simple steps, okay, clear students. I hope you get my point, okay. So properties डिटर्मिनेंट में होते हैं. प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिसके यूज करने से हम अपने सॉल्यूशन पा सकते हैं, एक रिजोल्यूशन, एक सॉल्यूशन, एक रिजल्ट हमें मिल सकता है. व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज डिराइविंग द वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके, सो वो हम पा सकते हैं वेरी इजीली विदाउट, और जो लेंदी प्रोसेस है अपना डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, वो लेंदी प्रोसेस को फॉलो करे बगैर हम अपने एक सॉल्यूशन तक आ सकते हैं विथ जस्ट फ्यू प्रोसेस, विथ जस्ट वन और टू प्रोसेस. क्लियर? जस्ट बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज. क्लियर? सो प्रॉपर्टी का यूज वो है कि प्रॉपर्टी के यूज करने से हम वेरी कम, विथ इन वेरी लेस टाइम, कम समय में हम अपना सॉल्यूशन कर पाएंगे फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट. ओके, क्योंकि देखो ये तो है एक कॉमर्शियल फील्ड में यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये जो मैट्रिक्स कॉमर्शियल फील्ड में. ओके, एंड एज वी नो कॉमर्स में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम का बहुत ही वैल्यू रहता है, क्योंकि अगर हम टाइम से कोई भी जो प्लानिंग करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, वो अगर टाइम से होगा तभी वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. सो इसके वजह से अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमें उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना है, तो इट इज बेटर टू फाइंड द सॉल्यूशन इमीडिएटली विदाउट मच वेस्ट ऑफ टाइम. क्लियर? सो वो टाइम के लिए, वो जो टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, विदाउट गोइंग थ्रू द लेंदी प्रोसेस वी कैन सॉल्व द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो वही है कि प्रॉपर्टी हम इसीलिए यूज करते हैं, और ये रेगुलर भी यूज भी होता है. एंड स्टूडेंट्स, एग्जाम में भी आप लोगों को ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. ओके, वो पूछ रहा होगा कि एक वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला होगा, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, नॉट बाय फॉलोइंग द प्रोसेस बट यूजिंग द प्रॉपर्टी. ओके,
So see students, we have determinant has 8 properties. 8 properties. क्लियर? इसके 8 प्रॉपर्टी हैं जो कि हम आज अपने क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, क्लियर? चलो, सो पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी. सी स्टूडेंट्स, एक एक प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे. ठीक है, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, फिर वो प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, कि प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, कौन से जगह पे हम कर सकते हैं, क्या करने से हमें एक इजी रिजल्ट मिल जाएगा, इजी वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो वो जो चीज है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली देखना, ध्यान से देखना. क्लियर? मैं वो जो है, जो रूल है उसको भी याद रखना है और उसका प्रोसेस को भी याद रखना है कि वो सॉल्यूशन कैसे होगा. ओके, सो दैट्स व्हाई सी, सो वी हैव द फर्स्ट प्रॉपर्टी 1, that if any row or column of the determinant consists of zeros only, if any rows or columns of a determinant, if any rows or columns of a determinant consist of zeros only, then the value of the determinant, is 0. The value of the determinant is 0. क्लियर? आए समझ में? जैसे कि हमें पता है, एक जब हम कोई भी एक डिटरमिनेंट निकालते हैं एक मैट्रिक्स का, ठीक है, तो उसमें रोज होते हैं, कॉलम होते हैं. क्लियर? वी मे हैव मेनी रो और कॉलम. तो डिटरमिनेंट हम किसके निकाल सकते हैं? ओनली इफ इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर? सो वी कैन नॉट फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स सब्जेक्ट टू ओनली इफ इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसी का ही हम डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे. ओके, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है 2 into 3 हो सकता है, 2 into 2, 3 into 3 हो सकता है, 4 into 4 हो सकता है. ठीक है, कोई भी हो सकता है. तो उसमें हम देखेंगे कि जो रो एंड कॉलम होता है, वो जो रो एंड कॉलम, इफ एनी रो और कॉलम, एनी रो, ओके, इट मे बी रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, कोई भी कॉलम में अगर ऑफ ए डिटरमिनेंट, मतलब जो है ये हम इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट. ठीक है, तो ये जो सोचो डिटरमिनेंट, ये जो 3 रो है 3 कॉलम है, इसमें क्या है, डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ जीरोस ओनली, मतलब उसका जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट 0. क्लियर? फॉर एग्जांपल, in the column 1 we have only zeros or in the row 1 we have only zeros. Clear? तो कोई भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है. If any row or column of a determinant consists of zeros only as the element, clear, it is called zeros only, means that in the place of element we have only zeros, then the value of the determinant is 0. उसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे होल वाइज, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज 0. ओके, तो ये है प्रॉपर्टी एक, कि हमें देखेंगे कि एक मैट्रिक्स का अगर हमें प्रॉपर्टी निकालना है, तो उसका अगर हम देखेंगे कि एक रो और एक कॉलम में ऑल द एलिमेंट्स आर 0, then we need not to go through the solution. We can write that according to property 1, we have that if all the row and column of the determinant consist of zeros, that's why the value of the determinant is 0. Okay, clear? So देखो स्टूडेंट्स, इसको हम देखेंगे by taking example. Clear? So as like we have to take 2 example, that is the example of second order determinant and or third order. Clear? तो first of all देखो कि अगर हम second order का लेंगे, okay, तो see, let the example is, let I have 2 1 in the row 1.
क्लियर? रो 1 में हमने क्या लिखा? इन द रो 1 वी हैव 2 1 2 and 1 in the first row. ओके, तो ये है, सही है वैल्यू। बाकी हम देखेंगे कि दूसरा रो है, सेकेंड रो, इफ वी हैव 0 0। क्लियर? ठीक है। सो ये क्या बोला? इफ एनी रो और कॉलम, कोई भी रो कोई भी कॉलम हो सकता है, कोई भी रो कोई भी कॉलम में ऑल द वैल्यूज आर 0। क्लियर? कंसिस्ट ऑफ जीरोस ओनली। तो ये क्या हो गया? रो 2 में पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया। क्लियर? सो डेफिनेटली इसका आंसर 0 ही आएगा, है कि नहीं? देखो हम सॉल्व करते हैं। चलो कि क्या हो गया? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्लियर? सो 2 एज वी नो A11 into A22 minus A21 into A12. Clear? 11, 22, 21, 12. Clear students? So क्या हो गया? 2 into 0 minus 0 into 1. So क्या आ गया वैल्यू? 2 0 0 minus 0 is equals to 0. Hence proved. Clear? देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट। क्लियर? ये जो मैंने बोला कि सेकेंड रो में वैल्यू आ गया 0 आ गया अपना। अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में अगर 0 डालेंगे तो सी लेट द फर्स्ट कॉलम में है 0 0। ओके, और बाकी अपना सेकेंड कॉलम में है 2 3। ओके, अभी इसको अगर निकालना है डिटर्मिनेंट, क्या हो गया? 0 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 2। So 0 minus 0 is equal to 0. क्लियर है? तो इसके हिसाब से क्या कि पहला प्रॉपर्टी अपना ये है कि अगर एक डिटर्मिनेंट में all the elements of the row and column consist of zeros, then the value of the determinant is 0. Clear students? So देखो एक थर्ड ऑर्डर का भी ले लेते हैं एग्जांपल। ओके, let we have 1 2 3. In the first row we have 1 2 3. In the second we have 4 5 6. Clear? And in the third row we have 0 0 0. Okay, third row में क्या हो गया? 0 0, all the values of the row 3 are 0. Now we are definitely sure that the determinant of the value is determinant of this is 0 definitely. Clear है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1। देखो उसको सॉल्व करते हैं। क्या हो गया? जैसे कि 1 इंटू क्या हो गया? अगर 1 लेंगे तो क्या बचा? डिलीटिंग दिस एंड दिस 5 6 0 0, देन प्लस माइनस 2 इंटू 4 6 0 0, देन प्लस 3 इंटू 4 5 0 0। ओके, क्लियर? नाउ सॉल्व इट। ये हो गया तो 0 0, 5 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 6। ओके, नाउ सी माइनस 2 इंटू 4 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 into 0 minus 0 into 5. So what we derive? We derive 1 into 5 into 0 0 minus 0 equal to 0, minus 2 into 4 into 0 0 into 6 0, plus 3 into 4 into 0 0 into 5 0. So all the values are 0 minus 0 plus 0 is equals to 0. Okay, clear students? आ गया समझ में? पहला प्रॉपर्टी देख लो थोड़ा अच्छे से। अगर इसमें कोई भी अगर डाउट्स आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना। क्लियर? आस्क योर क्वेश्चन दैट सर ये एक है पॉइंट डाउट है, उसको मैं कमेंट्स में सॉल्व कर दूंगा। क्लियर हो गया? नाउ इज द टाइम फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ओवर।
Okay, now second property. Clear? What is the second property of the determinant? See, the second property is, write down, if any two row or column of the determinant are identical, if any two rows or column, if any two rows or columns of a determinant are identical. Identical मतलब identical means equal, are identical, then the value of the determinant, then identical, then the value of the determinant becomes or is 0. ओके, अपने जो है रो एंड कलम, अगर टू रोज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों ही इक्वल हैं, 1 2 3 1 2 3, क्लियर? लाइकवाइज, तो उसका क्या होगा? अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया तो वो टाइम पे भी वो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0. ठीक है, एट दैट टाइम आल्सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. क्लियर स्टूडेंट्स? आइडेंटिकल मतलब इक्वल, दोनों का जो है एलिमेंट्स, दोनों का एलिमेंट्स इक्वल हैं. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अगर कोई एक डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है और उसमें जो है रो एंड कॉलम, अगर एनी टू रो और टू कॉलम, रो टू रो कॉलम टू कॉलम, ओके, रो कॉलम नहीं होगा. क्लियर? रो इक्वल है, कॉलम इक्वल, ऐसा नहीं. इफ एनी टू रो और कॉलम, रो टू रो इक्वल, कॉलम टू कॉलम इक्वल, रो कॉलम इक्वल तो नहीं होगा वो सिचुएशन. ठीक है, तो वो टाइम पे हमें देखेंगे अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. क्लियर? लेट अस टेक द एग्जांपल of second order. Clear? Let 2 4, in the row 1 we have 2 4 and in the row 2 also we have 2 4. Clear? हो गया कि नहीं? तो इसमें क्या हो गया? रो 1 इज इक्वल टू रो 2, है कि नहीं? रो 1 इज इक्वल टू रो 2, क्योंकि रो 1 में वैल्यू है 2 and 4. क्लियर? एंड रो 2 का वैल्यू भी है 2 and 4, सो बोथ आर आइडेंटिकल. क्लियर? तो इसका वैल्यू डेफिनेटली हमें पता चल गया कि क्या आएगा? 0 ही आएगा. तो चलो सॉल्व करते हैं. सो 2 into 4 minus 2 into 4, that comes 4 to the 8 minus 8, 0. Clear? So because of here two rows are equal, the value of the determinant is 0. Clear? अभी चलो लेते हैं कि दो कलम अगर इक्वल हो गया. ठीक है, कलम देखेंगे कि चलो 2 2, ओके, ये अगर पहला फर्स्ट कलम, अगेन 2 2. क्लियर? से ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि रो भी इक्वल, कलम भी इक्वल, नहीं, बोथ रोज आर इक्वल, बोथ कॉलम्स आर इक्वल. क्लियर? सो इसको अगर लेंगे हम 2 into 2 minus 2 into 2, तो क्या हो गया? 2 to the 4 minus 2 to the 4 is equals to 4 minus 4, 0. Clear? Okay students, now let us take an example of third order determinant. Let 4 5 6, okay, 1 2 3, again 4 5 6. Okay, so here we see that row 1 and row 3, clear, the two rows are equal, so definitely the value becomes 0. Let us find. So 4 into, अगर हम लेंगे 4 into क्या बचा? 2 3 5 6, okay, 2 3 5 6 minus 5 into 1 3 5 6 plus 6 into 1 2 4 5. Okay, now 4 into क्या हो गया? 2 into 6 minus 5 into 3 minus 5 into 1 into 6 minus 5 into 3 plus 6 into 1 into 5 minus 4 into 2. क्या हो गया? 4 into ये क्या बचा? 6 2, 2 6 are 12 minus 15 minus 5 into 6 minus 15
प्लस 6 इंटू 5 माइनस 4 टू ज़ा 8. सो क्या बचा 4 इंटू, अब ये क्या कितना बच गया -3, 12 माइनस 15 -3 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -9 प्लस 6 इंटू 5 माइनस 8 इक्वल्स टू -3. सो क्या हो गया 4 3 ज़ा 12 माइनस 12, ये माइनस माइनस प्लस 9 5 45, ये प्लस माइनस माइनस 6 3, सॉरी स्टूडेंट्स लगता है कहीं पे क्या हो गया. देखो 4 इंटू, अगर हम 4 लेंगे तो if we take 4 then 2 3 5 6 minus 5 into 1 3. ओके चलो इधर गलत हो गया. 1 3 it is 4 and 6. ओके wrongly we write 5 and 6. क्लियर. नाउ प्लस 6 इंटू, अभी क्या बता 1 2 4 5, तो इधर गलती हो गया. सो 1 इंटू 6 ठीक है, माइनस ये हो गया 4 इंटू 3. ओके सो 4 3 ज़ा 12. क्लियर. सो ये हो गया 6. क्लियर. सो उसके हिसाब से ये कितना हो गया 6 5 30. ओके क्लियर स्टूडेंट्स. सी ये जो है ये भी एक प्रोसेस ही है. ठीक है, गलत तो होता ही है प्रोसेस में. तो देखो स्टूडेंट्स ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. ठीक है, व्हाइल फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, ये जो है ना गलती, देखो हमसे भी गलती हो जाती है कि नहीं. तो ये जो गलती होना वेरी माइनर है, मतलब कॉमन है, सब स्टूडेंट्स का ऐसा ही गलती होता है कि नहीं. एक वैल्यू लेने की जगह पे, जैसे कि मैं अभी इधर क्या किया 4 and 6 के बदले में मैं क्या ले गया 5 and 6, तो अपना वैल्यू गलत आ रहा था, है कि नहीं. तो सोचो इधर हमें तो पता है here we know that the value become 0, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि चलो वैल्यू तो 0 नहीं आ रहा है एंड में, तो डेफिनेटली मेरा कोई गलत हो गया है ये प्रोसेस में. बट जब हम कुछ अलग कर रहे होंगे, जब कुछ वैल्यू का एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो वो टाइम पे हमें पता नहीं कि ये डिटर्मिनेंट कितना आएगा वैल्यू, तो क्या होगा वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो while finding the determinant please do it carefully. क्लियर. ठीक है, देखो बस एक प्रोसेस आप केयरफुली करोगे ना तो उसके बाद सारा वो टाइम पे कोई गलती होने का चांस ही नहीं है. कौन सा प्रोसेस है ये जो है ना प्रोसेस, ये प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि कौन सा वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाइड होने वाला है. ठीक है, ये अगर आ गया अच्छे से तो बाकी सारे प्रोसेस में कोई भी गलती होने का चांसेस नहीं है. ठीक है. सो एज वी सी -12 plus 30 minus 18, that -30 plus 30 is equals to 0. ओके क्लियर हो गया, आए समझ में. now we move to another property, that is the third property. तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जाएंगे तो हमें प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए कि ये सिचुएशन आ गया तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी यूज करना है और डिराइव करना है कि नहीं. तो सिचुएशन के हिसाब से हमें प्रॉपर्टी यूज करना है. तो प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं अगर वो हमें याद रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट डन, सेकेंड, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी. क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, देखो. So third property is if the row and columns are interchanged, if two rows and columns are interchanged, the value of the determinant remain unchanged. Okay, if the rows and columns are इंटरचेंज्ड. ओके, तो एज वी नो स्टूडेंट्स, जब रो कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसपोज. ओके, व्हेन सो हियर इट इज ट्राइंग टू से इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, दैट मींस ट्रांसपोज्ड.
अगर कोई दो रो और कॉलम ट्रांसपोज होता है, रो और कॉलम, ठीक है, if the rows and columns are interchanged or transposed, the value of the determinant remains unchanged. ओके, मतलब एक डिटर्मिनेंट है, उसका हम पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज करके वैल्यू निकालेंगे, तब भी दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, है कि नहीं? अगर दो है, मतलब जो दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, एक डिटर्मिनेंट है, उसका हम वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका अगर ट्रांसपोज करके हम वैल्यू निकालेंगे, तब भी वही जो वैल्यू ही आएगा. ओके, क्लियर? लेट अस टेक द एग्जांपल. So first we take let second order like 4 3 7 9. ओके, तो पहले क्या करेंगे, इसका चलो हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो क्या हो गया इसका डिटर्मिनेंट, 4 into 9 minus 7 into 3, that comes 9 4 36 minus 21. So 36 minus 21, that comes 15. ओके, क्या आ गया अपना वैल्यू, 15 आ गया. सो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 15. नाउ व्हाट वी डू, इंटरचेंज करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे. दैट मींस रो को कॉलम करेंगे और कॉलम को रो कर देंगे. तो चलो इधर हम क्या करते हैं कि ये है रो 1 रो 2, चलो रो 1 को कॉलम 1 कर देते हैं, रो 2 को कॉलम 2 कर देते हैं. ठीक है, रो 1 इज इंटरचेंज इनटू कॉलम 1. क्लियर? सो क्या हो गया, न्यू डिटरमिनेंट दैट 4 3. ठीक है, पहला रो था 4 3, उसका हमने कर दिया कॉलम 4 3. 7 9 उसका हमने कर दिया सेकेंड कॉलम. ठीक है, अभी चलो उसका वैल्यू निकालते हैं. तो क्या हो गया, 4 into 9 minus 3 into 7, so that comes 36 minus 21 is equals to 15. Clear? So all the values remain unchanged. उसको ट्रांसपोज करने के बाद भी हम अगर निकालते हैं तो उसका वैल्यू भी वही आएगा. ओके, रिमेन अनचेंज ही रहेगा. ठीक है, सो इट मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज. क्लियर? इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट, है कि नहीं? क्लियर स्टूडेंट? डेल्टा जो बोलते हैं हम, डेल्टा मतलब ये तो ये पहला था जैसा एज यूजुअल था, उसको हमने ट्रांसपोज किया, उसका जो निकला दोनों का सेम ही आएगा. ठीक है, सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा दिस, द ट्रांसपोज डेल्टा. ओके, क्लियर? तो चलो अभी हम थर्ड ऑर्डर का भी कोई ले सकते हैं. ओके, चलो ले लेते हैं थर्ड ऑर्डर का. लाइक देखो, पहले हम लेते हैं लेट 1 2 3 4 2 1 3 5 4. ओके, चलो सोचो कि ये हो गया अपना एक डिटर्मिनेंट निकालना है. तो चलो हम पहले निकालते हैं 1 into, सी स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से निकालना है, मैं अभी थोड़ा क्विकली कर रहा हूं ये. ओके, सो ये हो गया 2 into 4 माइनस, ये जो पहला स्टेप है मैं वो स्किप कर रहा हूं. ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है, हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इसके वजह से ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को करना है. ठीक है, आप लोगों के नोट में, एग्जाम नोट में आपको वो पूरा प्रोसेस ही फॉलो करना है. ठीक है, बिकॉज ऑफ कंसिस्ट मैंने टाइम कंस्ट्रेंट मैं इधर एक प्रोसेस को स्किप कर रहा हूं. ठीक है, आप लोगों को नहीं करना है, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है. ठीक है, सो 2 into 4 5 into 1. क्लियर? माइनस 2 into क्या हो गया 2, सो 4 into 4 माइनस 3 into 1 प्लस 3 into 4 into 5 minus 3 into 2. Okay, now fine. ये हो गया 4 2 जा 8, 8 minus 5 minus 2 into 4 4 16 minus 3 1 3 plus 3 into 4 5 20 minus 3 2 6. So that comes ये हो गया 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 माइनस ये हो गया 16 minus 3, ये हो गया 16 minus 3 13 13 13 2 जा 26.
सो हो गया 26, ओके माइनस ही रहेगा क्योंकि 13 टू 26, हो गया प्लस 20 माइनस 6 14, क्लियर। तो 14 3 जा 52, 42 सॉरी, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, सो हो गया 26 प्लस 42, ये 42 प्लस 3 45 minus 26, clear? So that comes ओके, ये हो गया वैल्यू अपना 19। नाउ हो गया ये, बाकी चलो हम देखते हैं, अभी इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम उसको रो और कलम को चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू सेम आएगा क्या, ओके। चलो अभी हम उसको ट्रांसपोज करते हैं। क्या ट्रांसपोज करते हैं कि रोज को, इफ द रोज एंड कलम्स आर इंटरचेंज, चलो रो और कलम को हम अभी इंटरचेंज कर देते हैं। ये क्या था 1 2 3 था, इधर डाल दो 1 2 3, ओके। 4 2 1, ये हो गया 4 2 1, ये हो गया 3 5 4, ये हो गया 3 5 4, ओके। नाउ सी, सो 1 इंटू, अभी क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, ओके। चलो 1 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 15, ओके, प्लस 3 इंटू 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, ओके। सो नाउ व्हाट, सो ये हो गया प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ओके। ये हो गया माइनस ये हो गया 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 इज माइनस 7 इंटू 4, माइनस 7 इंटू माइनस 4, दैट कम्स प्लस 7 28, ओके। ये हो गया 2 माइनस 6 माइनस 4, सो 4 3 12, ये हो गया माइनस 12, क्लियर। सो अभी क्या हो गया कि 28 प्लस 3 31 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 19, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स, हो गया ना, इक्वल आ गया है कि नहीं। तो हमें क्या पता चला कि the value of a determinant and the value of the transpose, clear, and the value of the determinant of transposed matrix both are equal, clear, okay students. Now we move on to another property, that is fourth one. स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट देना कि ये जो क्लासेस है कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर कुछ इम्प्रोवाइज करना है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो क्लासेस लेते टाइम मुझे जैसा लगता है कि बच्चों को जो टाइप से समझ में आएगा वो मैं इंटरप्रेट करता हूं, ठीक है, वो मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, ओके। अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये अगर ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो दैट मीन्स इफ यू वांट सम चेंज, ओके, अपना टीचिंग स्टाइल में, ओके, स्पीड में और राइटिंग अगर कुछ समझ में ना आ रहा तो प्लीज कमेंट मी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उसको भी चेंज करेंगे, बिकॉज हम अभी जो भी कर रहे हैं ऑल फॉर यू, ठीक है, आप लोगों के लिए ये हो रहा है, ठीक है। तो बी फ्रैंक, क्लियर, एंड डोंट अफ्रेड
to give your suggestion and feedback. Okay, regarding class, regarding teaching style or anything. Clear? That you feel that ये जो point है इसमें थोड़ा ड्रॉबैक आ रहा है, इसमें थोड़ा लिमिटेशन हो रहा है, तो हम ट्राई करेंगे वो लिमिटेशंस को क्लैरिफाई करने के लिए. ओके, वो जो लिमिटेशंस हैं उसको मेरिट्स में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, क्लियर? सो नाउ द टाइम फॉर द फोर्थ प्रॉपर्टी. ओके, क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी? सी, if any two adjacent row or column of a determinant are interchanged, if any two adjacent rows or column, if any two adjacent row or column of a determinant are interchanged, okay, are interchanged, then the value of the determinant remains same. Then the value of the determinant is same. Okay, but with a opposite sign. Okay, but with a opposite sign. मतलब इससे पहले हमने जो किया थर्ड में क्या देखा कि रो एंड कॉलम को अगर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. इधर भी वो वही बोल रहा है कि अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ओनली साइन चेंज होगा. सब्जेक्ट टू हियर सी ए वर्ड एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब पता है स्टूडेंट्स, एडजेसेंट का मतलब क्या है? क्लोज. क्लियर? नियर बाय. क्लियर? नियर बाय, आसपास. मेरे एक के पास 2 है, एक के पास 3 नहीं है, तो हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है. 1 को 3 में नहीं कर सकते, 1 को 2 में करना है, 2 को 3 में करना है. ठीक है, अगर एडजेसेंट टू रो एंड कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? तो उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू तो सेम रहेगा प्रीवियस डिटरमिनेंट के साथ, बट उसका जो साइन है अगर उसमें अगर प्लस आया होगा +5 तो इसमें क्या जाएगा? -5. उसमें अगर था -10 तो इसमें हो जाएगा +10. ओके, आया समझ में? सो वी हैव टू इंटरचेंज, ओके, टू adjacent. That is important over here. The two adjacent, आसपास. क्लियर? आसपास. 1 के पास 2, so 1 and 2 called adjacent. 1 and 3 not called adjacent. क्लियर? So adjacent मतलब पास पास जो है 1 2 2 3 3 4. क्लियर? लाइकवाइज. तो चलो हम पहले लेते हैं एक एग्जांपल 2 and 2 का. ओके, तो सी स्टूडेंट्स, इधर हमें ट्रांसपोज नहीं करना है, ठीक है ना? ट्रांसपोज नहीं करना है इधर. वो जो पहले में हम ट्रांसपोज किए थे इधर ट्रांसपोज नहीं करना, बट इंटरचेंज. इंटरचेंज मतलब जस्ट प्लेस चेंजेस होगा. ठीक है कि नहीं? पहला चलो देखते हैं. लाइक सी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, चलो 5 3 6 4. लेट 5 3 6 4 ये हो गया. ओके, चलो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या हो गया? 5 into 4 minus 6 into 3. So that comes 5 4 20 minus 6 3 18 is equals to 2. Clear? So क्या गया? ये वैल्यू हो गया 2. Now if we interchange two adjacent row, clear? अभी हम क्या करेंगे? Now we interchange. क्या क्या इंटरचेंज करेंगे? चलो ये है रो 1 रो 2. चलो रो 1 रो 2 को इंटरचेंज करते हैं. रो 1 को रो 2 बना देंगे, रो 2 को रो 1 बना देंगे. नाउ वी इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2. क्लियर? रो 1 रो 2 का अगर हम अभी इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो गया वैल्यू? ये हो गया 6 4 5 3. क्लियर? आए समझ में स्टूडेंट? इसको बोलते हैं इंटरचेंज. इंटरचेंज मतलब हमें एडजेसेंट रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है. ठीक है, मतलब वैल्यू प्लेस को चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज नहीं करना है. सो नाउ 6 into 3 minus 5 into 4.
6 3 is 18 minus 20 that comes minus 2. है क्या समझ में? अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो गया, इधर ये था +2 में था, अभी क्या गया -2 हो गया. ओके, द साइन ऑपोजिट साइन सेम वैल्यू आएगा, क्लियर, बट साइन चेंज होगा, ऑपोजिट साइन आएगा, उसका प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस था तो प्लस हो जाएगा. ओके, क्लियर, आ गया समझ में? चलो और एक करते हैं, लाइक लेट लेंगे 2 1 4 5. ओके, 2 1 4 5. सो चलो 2 into 5 minus 4 into 1. So 5 to the 10 minus 4 that is equals to ये आ गया +6. अभी चलो इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इधर रो किए थे, इधर हम कॉलम करते हैं, है कि नहीं? इधर रो 1 रो 2 को चेंज करते हैं. Now we interchange column 1 and column 2. C1 C2 को चेंज करते हैं, C1 को C2 कर देंगे, C2 को C1 कर देंगे, तो C2 को कर देंगे C1 और C1 को कर देंगे C2. ओके, ये था 2 4, ये 2 4 आ गया इधर, 1 5 आ गया इधर. नाउ सी 1 into 4 minus 5 into 2 that comes 4 minus 10 is equals to -6. हो गया ना? पहले था 6, अभी हो गया -6. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का. तो थर्ड ऑर्डर का भी हम कर सकते हैं. क्लियर करेंगे कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे? क्या है, करेंगे? चलो एक कर लेते हैं, ठीक है. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल दैट ऐसे जो है ये जो प्रॉपर्टीज अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना, ठीक है. आप अपने आप से कुछ भी अपना एग्जांपल ले लो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है. जैसे हमें पता है तो कि जो डिटरमिनेंट है उसमें कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, 0 लो, माइनस लो, प्लस लो. तो आप लोग सोचोगे कि सर आप क्यों सिर्फ ओनली प्लस वैल्यू ले रहे हैं, 0 नहीं ले रहे हैं, माइनस वैल्यू नहीं ले रहे हैं? तो हम कुछ भी ले सकते हैं, है कि नहीं? कुछ भी ले सकते हैं. क्लियर? सो आप लोग वो लेके प्रैक्टिस करो. ओके, चलो एक थर्ड ऑर्डर का भी बता देते हैं. Okay, let we take चलो कुछ भी ले सकते हैं. ओके, सो लाइट टेक 1 0 -2. ओके, चलो माइनस में ले लिया. 1 0 -2 4 3 1. ओके, देन हो गया 0 -3 4. ओके, तो ये हो गया एक डिटर्मिनेंट. अभी हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. 1 into ये हो गया क्या, 3 into 4 minus 3 into 1 minus 0 into ये तो वैल्यू पूरा 0 हो गया. चलो 4 into 4 minus 0 into 1, तो ये हो गया क्या, देखो ये है -2. ठीक है, तो इसका जो साइन क्या है, प्लस है कि नहीं? प्लस माइनस प्लस, क्लियर नहीं? तो प्लस माइनस ये हो गया -2 इंटू हो गया 4 इंटू -3 माइनस 0 इंटू 3. ओके, चलो नाउ 4 3 is 12, ये हो गया -3. ओके, -3 इंटू 1 -3, सो -3 माइनस +3. ओके, माइनस प्लस. नाउ ये हो गया -0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, 4 4 16 -0 ये हो गया. चलो -2 इंटू अभी देखते हैं 4 3 is 12, ये हो गया -12, ये हो गया चलो 0 हो गया, है कि नहीं? तो ये हो गया -12. सो नाउ ये 4 3 12, तो हो गया 15. क्लियर? 12 + 3 15 1 जा 15. ये चलो इसका वैल्यू तो हो गया पूरा 0, ये हो गया -0 पूरा हो गया. बाकी ये बचा -12 2 जा 24, ये माइनस प्लस 24. सो ये +15 + 24, क्लियर? कितना हो गया? 39. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अभी हम इंटरचेंज करेंगे. क्या करेंगे इंटरचेंज? चलो नाउ वी इंटरचेंज. Now what we do? Now we interchange. किसको करेंगे बोलो? किसी को भी कर सकते हैं. adjacent subject to, है कि नहीं? adjacent रो एंड कॉलम को ही चेंज करना है कि नहीं?
मतलब 1 3 को नहीं कर सकते, 1 2 को करना है, 2 3 को करना है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, इधर लेट रो 1 और रो 2 को करते हैं, नहीं तो चलो रो 2 और रो 3 को करते हैं। रो 1 2 तो पहले किए थे, इसमें करते हैं रो 2। नाउ वी इंटरचेंज रो 2 एंड रो 3। रो 2 रो 3 को हम अभी इंटरचेंज करते हैं। तो क्या हो गया, रो 2 रो 3 चेंज हो गया। तो रो 1 एज यूजुअल 0 1 0 माइनस 2, अभी 2 के जगह पे लिखेंगे 3, 3 के जगह पे लिखेंगे 2, ये हो गया 0 माइनस 3 4, ठीक है। 3 आ गया 2 के जगह पे, अभी 2 जाएगा 3 के जगह पे, 4 3 1 हो गया अपना कंस्ट्रक्ट। ना चलो उसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ना 1 इंटू ये हो गया माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 0 0 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 4, तो ये हो गया प्लस प्लस अगेन माइनस माइनस 2 इंटू 0 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 3। ओके, सो नाउ ये क्या हो गया माइनस 3, ये माइनस 3 माइनस 4 3 जा 12, ये हो गया माइनस 0 इंटू ये तो हो गया पूरा 0, क्लियर, दैट मीन 0 माइनस 16, ये हो गया माइनस 2 इंटू 0 0 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12, ये हो गया माइनस 13 और माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ये माइनस 15, सो हो गया माइनस 15, ये हो गया माइनस 0, क्लियर। सो ये हो गया 12 2 जा 24, सो प्लस माइनस माइनस ये हो गया 24, क्लियर। सो अभी क्या हो गया माइनस 15 माइनस 24 दैट इज माइनस 39। ओके, पहले आंसर था अपना 39, अभी आ गया इंटरचेंज एडजेसेंट, जो हम R2 एडजेसेंट रो को इंटरचेंज किए रो 2 एंड रो 3, अभी क्या हो गया वैल्यू माइनस 39। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। सो इससे क्या पता चला कि अगर 2 एडजेसेंट रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट साइन सॉरी वैल्यू चेंज नहीं होगा, ओनली साइन चेंज होगा। ओके, क्लियर, ओके डन। नाउ fourth property over, now fifth one. Okay, see fifth property क्या है, देखो, if every element in any row or column, if ये थोड़ा लेंदी है स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ो याद करो, ठीक है। if every elements in any row, every elements in any row or column consist of the sum or difference, sum or difference of two quantities, sum or difference of two quantities, then the determinant can be expressed as, then the determinant can be expressed as the sum or difference of, as the sum, अगर sum रहेगा तो sum और difference रहेगा तो difference, sum or difference of two determinants, expressed as the sum or difference of two determinants, difference of two determinants of the same order, determinants of the same order, क्लियर स्टूडेंट्स। सो देखो ये जो है ना, ये जो प्रॉपर्टी है
इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं देखो, इफ एवरी एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, है कि नहीं। इफ एवरी एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी, लाइक पहले हम जो लिखते थे लाइक 2 4 3 6, अभी 2 4 ये तो एक सिंगल क्वांटिटी, सिंगल क्वांटिटी सब। चलो हम ऐसे बनाते हैं कि ये जो है दूसरा रो सोचो कि 4 6 जो है ये एक ही क्वांटिटी नहीं, 2 क्वांटिटी मिलके ये बनता है। लेट 4 + 1 ये +2 है, समझ में है कि नहीं। तो ये हो गया क्या, 4 + 1 6 + 2। और हम इसको बोल सकते हैं 4 - 1 6 - 2, बिकॉज ये बोला कि सम और डिफरेंस कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम और डिफरेंस ऑफ टू। तो इसको मतलब ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसको हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2 3 4 6 ये है एक, बाकी इधर है माइनस दूसरा जो है क्या बोला देखो कि डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम और डिफरेंस। अगर सम होगा तो इधर प्लस आएगा, अगर डिफरेंस होगा तो इधर माइनस आएगा, ठीक है। तो दो डिटरमिनेंट, मतलब ये जो एक थे बट एक में 2 वैल्यू था, इसको हम 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ द टू डिटरमिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर सेम होना है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 2 3 4 6, बाकी दूसरा क्या आएगा 2 3, ये था क्या 1 2, ये हो गया 1 2। मतलब ये जो 1 2 इस तरह से जो माइनस हुआ है इसको हमने कॉमन निकाल के ऐसे कर दिया। क्लियर, देखो स्टूडेंट अच्छे से थोड़ा समझो, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा नया टाइप का है, वो जो पहले वाला किया वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेट हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं, पहले सेकंड ऑर्डर का लेते हैं। लेट आई से 2 3 7 1, 2 + 3 7 + 1, इधर हमने लिख दिया 5 और 6, ओके क्लियर। तो ये हो गया। सो सी हियर इफ एवरी एलिमेंट इन एनी रो, ये हो गया कॉलम, रो भी बना सकते हैं कॉलम भी बना सकते हैं। तो ये जो कॉलम में हो गया एवरी एलिमेंट, ये जो 2 एलिमेंट थे दोनों में क्या हो गया कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी का सम हो गया, 2 + 3 2 क्वांटिटी का सम हो गया। इधर हम डिफरेंस भी कर सकते हैं, ओके। तो इसमें से ये बना, ऐसा बना है ये। तो अभी हम काम क्या करेंगे, तो इसका अभी हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। चलो तो क्या हो गया, इसको हम एज यूजुअल करेंगे, ये हो गया 2 + 3 × 6, जैसे हम एज यूजुअल करते हैं वैसे ही करेंगे। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस मतलब 7 + 1 × 5, ओके। तो अभी इसको हम स्प्लिट करते हैं, इसका मतलब क्या है 2 + 3 मतलब 2 × 6, है कि नहीं। इसका मतलब है 2 × 6 + 3 × 6 माइनस, इसका मतलब क्या है 7 × 5, है कि नहीं। देखो अच्छे से 2 + 3 × 6, ये कॉमन 6 है, तो 6 को हम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किए, प्लस 6 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किए, देन माइनस 7 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई किए, प्लस 1 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो अभी हम ये जो आ गया ये ऑर्डर में नहीं हुआ, है कि नहीं। अपना जो ऑर्डर क्या है फर्स्ट माइनस सेकेंड, है कि नहीं। हम क्या करते थे दिस माइनस दिस, तो चलो अभी हम इसको उसी ऑर्डर में सेट कर देते हैं। तो क्या हो गया देखो, लेट 2 × 6 माइनस 7 × 5, एक पहला माइनस दूसरा है ना, ये है पहले का फर्स्ट का, ये है सेकेंड का, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्लियर। अगेन प्लस, ये जो है प्लस फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्लियर। सो अभी क्या हो गया देखो, ये हो गया ना 2, क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम क्या करेंगे इसको, जैसे सोचो कि इसमें से हम इधर आते थे, अभी हम इधर से
वो जो डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है बोलो, 2 into 6 मतलब 2 is the A11 and 6 is A22 है कि नहीं, and 7 is A21 and 5 is A12 है कि नहीं, प्लस वैसे ये भी, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये 1 5 है कि नहीं। तो चलो क्या हो गया, इसको हमें क्या बनाना था, कैसे निकालना था कि 2 7 5 6 प्लस 3 1 5 6, देखो आ गया कि नहीं, 2 5 7 6 3 5 1 6 हुआ कि नहीं, क्लियर। तो आए समझ में कि अगर हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है, उसको अगर हम 2 में एक्सप्रेस करना है, दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक कॉमन फैक्टर को वो जो रो और कॉलम के साथ पूरा का पूरा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो करके अभी हम ये जो ऑपरेशन करने से वो 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस हो सकता है। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 एग्जांपल जिसमें क्या हमने क्या किया कि एक जो रो एक कॉलम है उसको हमने लिया, ठीक है। अभी अगर हम एक तीसरा 3 into 3 डिटर्मिनेंट भी लेंगे तो सेम ही आएगा। चलो लेते हैं 3 into 3 डिटर्मिनेंट एक, ओके। लेट एग्जांपल, सोचो कि इसमें हमने क्या लिया था, इसमें हमने पहले फर्स्ट कॉलम को लिया था, चलो अभी रो को लेते हैं, है कि नहीं। इफ एनी रो और कॉलम बोला है तो चलो अभी हम पहले जो है रो को ले लेते हैं, ठीक है। लेट 1 plus 2 ये हो गया 3 plus 1 ये हो गया 4 plus 2, ठीक है। बाकी ये बचा 0 1 2 2 1 3, ओके। अभी अगर हम इसको निकालेंगे मतलब एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम वैसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट में, ओके। तो चलो क्या हो गया देखो, नाउ ये हो गया 1 plus 2 अगर हम इसमें लेंगे, ओके, तो क्या हो गया देखो 1 plus 2 लिए, 1 plus 2 क्या हो गया 1 3 सॉरी 1 2 1 3, ओके, 1 3 1 2 1 3। नाउ ये हो गया माइनस 3 plus 1 into ये हो गया 0 2 2 3, ओके। नाउ प्लस 4 plus 1 into ये क्या हो गया 0 1 2 1 0 1 2 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर डेफिनेटली हमें पता है क्या कि ये तो आ गया 0 1 2 ही आएगा, ये 2 1 3 आएगा, इसमें आएगा 1 3 4 ये है 1 प्लस ये हो जाएगा 2 1 और 2 है कि नहीं, 2 1 2, बाकी 0 1 2 2 1 3 ये हो जाएगा, 2 एक्सप्रेस आएगा, ये अपना आंसर आएगा, है कि नहीं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इसको लिख दिया एज यूजुअल। अभी क्या करना है, उसको अभी स्प्लिट करना है, ठीक है कि नहीं। तो चलो करते हैं पहले, ये जो है 1 को इसमें देंगे, 2 को भी इसमें मल्टीपल करेंगे, है कि नहीं। तो चलो 1 into लेट ये हो गया 1 2 1 2 1 3, ओके, प्लस 2 into 1 2 1 3, ओके। नाउ ये हो गया, देन माइनस 3 into 0 2 2 3, ओके, ये हो गया माइनस प्लस माइनस 1 into 0 2 और 2 3, ओके। नाउ 4 into 0 1 2 1 plus 1 into 0 1 2 1, ओके।
क्लियर? अभी हमें इसे क्या करना है कि ऑर्डर के हिसाब से सेट करना है। क्या था अपना ऑर्डर कि पहले एक प्लस वाला, फिर दूसरा माइनस वाला, फिर तीसरा प्लस वाला, है कि नहीं? प्लस माइनस प्लस, ये है क्या, देखो प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, ऐसा है। तो उसको हम कैसे सेट करेंगे कि जैसा हम सेट करते थे वैसे सेट करेंगे। चलो कि 1 इंटू 1 2 1 3 ये हो गया प्लस, देन माइनस, माइनस 3 इंटू 0 2 2 3, देन प्लस 2 इंटू 1 2 1 3, है समझ? प्लस माइनस प्लस, क्लियर? अगेन क्या हो गया, प्लस प्लस में क्या है, देखो 4 है, ठीक है? तो किसी को भी ले सकते हैं, है कि नहीं? चलो प्लस है, इधर 4 है, तो अगर हम लेंगे 4 को तो हो गया 0 1 2 1, क्लियर? प्लस माइनस 1 है, 0 2 2 3, ओके, एंड आ गया प्लस 1, प्लस 1 0 1 2 1, ठीक है? अभी अगर हम इसको एज यूजुअल सेट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, बस ये दो वैल्यू ही आएंगे, है कि नहीं? कि देखो पहले हम लिख दिया इधर 1, क्लियर स्टूडेंट? देखो इसको हम कैसे बनेंगे, वैसे ही देखो हम क्या बनाते, ये था पहला रो 1, हम लेते थे, रो 1 से रो 1 लेके एक्सटेंड किए थे, तो ये था पहला वैल्यू, फिर क्या डालते थे, इधर क्या आ गया, ये आ गया 1 2, ये आ गया 1 3, है कि नहीं? 1 2 1 3, देन ये आ गया माइनस 3, है कि नहीं? क्लियर? तो इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये दो वैल्यू ही आएंगे, ठीक है? सो प्रैक्टिस करो, इधर ये जो हमने लिखा बस इसको सेट करके लिखना है कि नहीं? मतलब ये फॉर्मेट में से ये फॉर्मेट में आते थे, अब ये फॉर्मेट में से ये फॉर्मेट में जाना है, ठीक है? क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया 5th प्रॉपर्टी इज ओवर, ओके? नाउ हम देखेंगे 6th प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स अभी तक जो भी प्रॉपर्टी पढ़े उसमें तो कोई भी डेफिनेटली डिफिकल्टीज नहीं आएगा, क्लियर? आई मे थिंक कि ये जो 5th प्रॉपर्टी में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो डाउट पूछना, ठीक है? चलो ये हो गया 5th प्रॉपर्टी ओवर। नाउ हम देखेंगे 6th प्रॉपर्टी, ओके? 6th प्रॉपर्टी क्या है? 6th प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इफ ईच डिटर्मिनेंट इन ए रो और कॉलम, इफ ईच एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है? इफ ईच एलिमेंट्स इन ए रो और कॉलम, इन ए रो और कॉलम of a determinant if each element in a row or column of a determinant is multiplied with or is multiplied by a constant, okay? constant मतलब कोई भी एक वैल्यू, let we take k, क्लियर? जिसको हम लेते हैं एज यूजुअल के, देन क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज k times the value of ओल्ड डिटर्मिनेंट। आए समझ में, है कि नहीं? इफ
each elements in a row or column of a determinant are multiplied by a constant. constant मतलब any number, ये जो दिया है कि constant k मतलब any number, let we take 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। constant k के साथ अगर हम उसको मल्टीपल करेंगे then the value of the new determinant, मतलब करने के बाद एक न्यू डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसका अगर हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो पहले वाला जो ओल्ड डिटर्मिनेंट था उसके वैल्यू से हमने जो वैल्यू को मल्टीपल किया उसका उतना टाइम हो जाएगा, ठीक है। आए कि नहीं समझ में? चलो एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेट एग्जांपल लेते हैं 2 3 5 and 6, ओके 2 3 5 and 6, ओके। तो चलो इसका अगर हम एज यूजुअल निकालते हैं डिटर्मिनेंट, सो 2 into 6 minus 5 into 3 that comes 6 to the 12 minus 15 is 12 minus 15 is equals to -3, क्लियर। इसका वैल्यू कितना आ गया? ये हो गया -3। अभी हम क्या करेंगे सोचो कि वो क्या बोला कि मल्टीप्लाई करेंगे एक के फैक्टर को विथ एनी रो और कॉलम, जो रो कॉलम में करेंगे उसका सब एलिमेंट में उसको मल्टीपल करना है, ठीक है। तो चलो हम अभी क्या करते हैं कि लेट अस मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, लेट अस मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट्स ऑफ रो 1, ओके, और कॉलम 1, कोई भी ले सकते हैं रो और कॉलम। लेट अस मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1, ये जो है कॉलम 1 बाई 3 है कि नहीं, 3 के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा नया वाला उसका भी, तो क्या हो गया देखो नया कंस्ट्रक्ट क्या हो गया कि हो गया 3 कि द 3 इज मल्टीप्लाइड बाय द ओनली द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1, ठीक है, दूसरे के साथ नहीं करना है। तो क्या हो गया नया, ये हो गया 2 into 3 हो गया 5 into 3, ये 3 6, क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया नया वाला है कि नहीं। क्या बोला हमने, लेट अस मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम 2, कॉलम 2 का कॉलम 1 का ईच एलिमेंट को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या गया नया, ये हो गया 6 15, ओके 3 6। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखो क्या आएगा, 6 into 6 minus 15 into 3, ओके, तो 6 6 36 minus 15 3 45, ओके। तो क्या हो गया, ये आ गया 9 -9 है कि नहीं, -9। सो व्हाट डू वी मीन बाय -9? -9 का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने बोला था, है कि नहीं, जैसे कि हमने बोला था कि अगर हम जो नया मैट्रिक्स नया जो डिटरमिनेंट आएगा उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है पहले वाला के ओल्ड डिटरमिनेंट के टाइम्स आएगा, है कि नहीं। तो के टाइम्स, तो पहला क्या था -3 था, -3 का के टाइम, के मतलब कांस्टेंट कितने लिया हम 3 लिए तो 3 into -3 is equal to -9, ओके। आया समझ में? देखो अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, अच्छे से देखो कि हमने इधर क्या किया कि पहले एक डिटरमिनेंट लिए, फिर क्या किए कि वो जो कोई भी एक रो और कॉलम ले लेंगे, ठीक है, कोई भी एक रो और कॉलम लेके उसका जो ऑल एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट वैल्यू में मल्टीपल अगर करेंगे देन जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसका अगर हम निकालेंगे डिटरमिनेंट तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पहले वाला इनटू वो जो कांस्टेंट फैक्टर उतना डेफिनेटली आएगा, ओके क्लियर। तो चलो अभी एक 3 3 वाला लेते हैं, 3 into 3, let us take 1 2 3 4 5 6 and 4 8 9, लेट, ठीक है। तो चलो इसका हम एज यूजुअल निकालते हैं डिटरमिनेंट, देन उसको हम चेंज करेंगे। ये हो गया 1 into
5 into 9 minus 8 into 6 minus 2 into 4 into 9. 4 into 9 minus 4 into 6. Okay, 4 into 9, 4 into 6. Now plus 3 into, ये हो गया 4 into 8 minus 4 into 5. Okay. Now what comes? 1 into 45 minus 48 minus 2 into 9 4 36 minus 24, ये हो गया plus 3 into 8 4 32 minus 4 5 20. So that comes, ये हो गया 1 into 45 minus 4 minus 3, तो हो गया minus 3, ये हो गया 36 minus 24. 36 24 मतलब 12, 12 2 जा 24 minus 24, ये हो गया plus 32 and 20, ये हो गया 12. 32 20 12, 12 3 36. Clear? So now the new value is, ये हो गया minus 3 minus 24. So minus 27 plus 36. Clear? तो क्या क्या 639 plus 9 आ गया वैल्यू, है कि नहीं? The value is plus 9. Now हमें क्या करना है कि कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू को हमें क्या करना है कि किसी भी एक रो और कॉलम से मल्टीपल करना है. ठीक है, तो देखो जैसे देखो कि पहले वाले एग्जांपल में हमने कॉलम 1 से किया था. तो नाउ लेट अस टेक द मल्टीप्लाइंग each element of row 1 by a constant element. Now multiplying each elements of row 1, क्योंकि कम है row 1 by a constant 2. लेट हमने क्या किया कि रो 1 के वैल्यू को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे. तो नया वाला क्या गया? नया वाला हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, है कि नहीं? क्लियर? बाकी एज यूजुअल 4 5 6 4 8 9. क्लियर? तो अभी अगर हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट तो क्या आ गया? डेफिनेटली कितना आ सकता है? सोचो कि 9 इंटू ये आएगा 9 आया था ना, है कि नहीं? 9 आया था, तो ये डेफिनेटली 9 to 18 ही आएगा. 9 into 2 इसके हिसाब से, है कि नहीं? ओल्ड इंटू द कांस्टेंट फैक्टर. तो चलो 18 आता है कि नहीं देखते हैं. चलो हम क्या करते हैं, इसका अगर हम निकालेंगे, देखो 2 इंटू ये हो गया 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6. क्लियर? माइनस 4 इंटू, स्टूडेंट रुको, ये जगह नहीं होगा शायद इधर, इसलिए हम इसको इधर कर देते हैं. ठीक है, सो ये हो गया 2 इंटू, ओके 2 इंटू हो गया 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6 हो गया माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9 4 9 4 6 4 9 4 6. ठीक है, देन प्लस 6 इंटू ये हो गया 4 8 4 5 4 8 4 5. ओके, चलो अभी हम इसको करते हैं कि हो गया 2 इंटू ये हो गया 5 9 45 माइनस 8 6 48 माइनस 4 इंटू 9 4 36 माइनस 6 4 24 प्लस 6 इंटू 4 into 8 32 minus 20. Okay, so now ये हो गया 2 into 45 minus 48 equal to minus 3. तो हो गया minus 6 3 into 2 is equal to minus 6. ये हो गया minus 36 minus 24 equal to 12. 12 into 4 48. ठीक है, minus 48 प्लस 6 इंटू ये हो गया 32. वेट ये 32 माइनस 20 ये हो गया 12. क्लियर? 12 इंटू 6 72. ओके,
सो अभी क्या बचा कि है गया 42 48 माइनस 6 माइनस 48 कितना गया 54 माइनस 54 प्लस 72 क्लियर दैट कम्स 18 18 का मतलब क्या है ओल्ड इनटू कांस्टेंट फैक्टर ओके क्लियर स्टूडेंट्स आया समझ में ओके देखो अच्छे से ओके नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी को देखेंगे ओके नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है सेवेंथ प्रॉपर्टी देखो सेवेंथ प्रॉपर्टी इज इफ if to each element of any particular row or column if to each elements of any particular कोई भी ले सकते हैं ठीक है any particular rows or column if to each elements of any particular rows or column the eq multiple of the corresponding element eq multiple of corresponding element of one or more row or column corresponding element of one or more rows or column one or more okay students so 6 properties over now 7th property okay कौन सा है 7th property if to each element of any particular row or column the eq multiple of corresponding element of one or more row or column any row clear we can take any row be added or subtracted the value of the determinant remain unchanged okay ये भी क्या है कि वैसे ही है कि पहले एक ओल्ड वाला जो अपना पुराना डिटरमिनेंट हम लेंगे एग्जांपल वो आने के बाद हम क्या करेंगे उसका एक वैल्यू आएगा नाउ देन वी चेंज करेंगे क्या चेंज करेंगे कि EQ मल्टीपल क्लियर सोचो कि लेट रो 1 रो 1 के वैल्यू को हम रो 2 के वैल्यू ठीक है रो 2 में जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक कुछ EQ मल्टीपल लेट एक कांस्टेंट लाइक 2 3 4 5 उसको मल्टीपल करेंगे फिर वो जो टोटल आएगा उसको अगर हम रो 1 के वैल्यू के साथ ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे क्लियर करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो पहले वाले के वैल्यू से इक्वल होगा क्लियर लेट अस टेक एन एग्जांपल लेट 2 5 6 8 लेट वी टेक 2 5 6 8 ओके ये लिए हम एक तो पहले इसको सॉल्व करो कि 2 into 8 minus 6 into 5 that comes 8 to 16 minus 6 5 30 is equals to minus 14 clear so here we get minus 14 अभी हम इसको क्या करेंगे देखो तो रो 1 रो 2 clear we have two rows here
Clear? We have row 1 and row 2. Clearly see, in the row 1 we have 2, 5. In the row 2 we have 6 and 8. Clear? So now what we do, now let us adding. Okay, क्या करना है देखो कि सोचो कि ये है कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2. चलो हम क्या करते हैं कि रो 1 हमने पहले लिख दिया 2 and 6, सॉरी कॉलम 1. नाउ लेट अस डू, नाउ लेट अस अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस एडिंग, ऐड करेंगे. एडिंग 3 times, adding 3 times, adding 3 times of the elements, 3 times of the elements of column 2, 3 times of the elements of column 2. column 2 के जो एलिमेंट हैं उसके 3 times को, उसका 3 time निकाल के उसको हम ऐड करेंगे column 1. now let us adding 3 times of the elements of column 2 to column 1 or with column 1, with column 1. ठीक है, तो क्या हो गया, column 1 में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, column 1 में हम ऐड करेंगे क्या कि column 2 के 3 टाइम. column 2 में क्या है 5, 5 into 3. क्लियर, 5 into 3 सेम इक्वल, ये है 8. एक इक्यू मल्टीपल बोला ना, इक्यू मल्टीपल. इक्यू मल्टीपल मींस हियर हमने जो लिया 3 को ही मल्टीपल करना है. ठीक है, विथ ऑल द एलिमेंट्स, with all elements of column 2 we here multiply 5 and 8 all the element of column 3. Clear, with 3, sorry column 2 with 3 and that value is added with the column 1. so 5 ये हो गया क्या 8 into 3. Clear, and the rest is as usual 5 8. ठीक है, तो क्या आ गया नया वाला, नया डिटर्मिनेंट अपना आ गया 5 3 15 plus 2 17, 8 3 24, 24 plus 6 30. ओके, ये हो गया 5 and 8 एज यूजुअल. चलो नाउ अभी हम इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, देखो ये हो गया 17 into 8 minus 30 into 5. क्लियर, तो 17 into 8 136 minus 150, 136 minus 150. so what is the value, minus 14. इधर भी था minus 14, ये भी आ गया minus 14. ओके, क्लियर. तो पता चला क्या कि देखो प्रॉपर्टी 6 में हमने क्या किया था कि एक बाहर से एक कांस्टेंट को लाके अपना जो कोई भी रो और कॉलम है उसके साथ हम मल्टीपल करते थे, फिर जो नया वाला आता था उसका वैल्यू रहता था, है कि नहीं. क्लियर, उसका वैल्यू क्या रहता था कि सेम रहता था. नाउ 7th में हमने क्या किया कि बाहर से कोई वैल्यू नहीं ला रहा है, उसी में कोई भी एक रो और कॉलम ले लो, उसका उसके साथ कुछ मल्टीपल कर दो, कोई भी एक कांस्टेंट, देन उसको दूसरा जो है कॉलम और रो एनी कोई भी हम कर सकते हैं, एनी रो इन कॉलम, उसके साथ अगर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, करने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे. ओके, क्लियर हो गया. चलो लेट वी टेक अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए ये प्रॉपर्टी. ओके, चलो और एक ले लेते हैं, लेट 2 3 1 2. क्लियर, सो इसका क्या हो गया 2 into 2 minus 3 into 1, that is 2 2 4 minus 3 is equals to 1. इसका वैल्यू कितना आ गया 1. ओके, नाउ let us वो ऐड किए थे इसको लेट सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ठीक है, देखो सब्ट्रैक्ट करने में क्या है कि अगर ये कोई बड़ा वैल्यू हो तो हम सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा रहेगा, बिकॉज हियर वी द वैल्यूज आर वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई हियर वी शुड गो विथ एडेड. सो नाउ लेट अस ऐड, नाउ लेट अस एडिंग
2 times of, now let us adding 2 times of the elements of row 1 with रो 2. ठीक है, रो 1 के जो एलिमेंट है उसको 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर उसको रो 2 में ऐड करेंगे. ठीक है, तो रो 2 कैसा आएगा, नया वाला. नाउ लेट अस एडिंग 2 टाइम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ रो 1 विथ रो 2. क्लियर. सो रो 2 के साथ हम मल्टीपल करेंगे, क्या है, ये था 1, ये था 2. ओके, तो ये क्या गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, सो 2 इंटू 2. ये तो पहला एज यूजुअल रहेगा, 2 3 एज यूजुअल, बिकॉज रो 1 में कुछ चेंज नहीं होगा, रो 1 एज यूजुअल रहा. बाकी हम रो 2 को क्या चेंज किए कि रो 2 में एडिंग 2 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट, 2 टाइम्स 2 इंटू 2, 2 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट 2 इंटू 2, एडिंग द 2 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ रो 1 विथ रो 2. क्लियर. नाउ सेम एडिंग 2 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ, ये क्या था, 2 प्लस 3 इंटू 2. ये पुराना एलिमेंट जो था 3 इंटू द कांस्टेंट इज 2. सो नाउ द नया एलिमेंट क्या आ गया, ये हो गया 2 3 एंड ये हो गया 2 टू द 4 प्लस 1 5, ये 3 टू 6 प्लस 2 7. ओके, ये बन गया अपना नया डिटर्मिनेंट. अभी इसको अगर हम वैल्यू निकालेंगे, सो 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 3. ओके, सो क्या हो गया, 2 इंटू 7 14 माइनस 5 इंटू 3 15. सॉरी स्टूडेंट, इधर हमने थोड़ा गलती कर दिया. क्या कि नाउ लेट अस एडिंग 2 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ रो 1. रो 1 के 2 टाइम्स को एलिमेंट्स को हमने रो 2 के साथ ऐड किया. ठीक है, तो ये हो गया 2 3. क्लियर. ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 to 6 plus 2 8. Okay, 6 plus 2 8. Now 2 into 8 minus 5 into 3. So 2 into 6, 2 into 8 16 minus 15, that comes 1. Clear. So both में दोनों का वैल्यू इक्वल ही है. Clear. Okay, so students please do practice a third order determinant with this property. Okay, हो सकता है कि नहीं, कि कर दें वो भी आप लोगों के लिए. चलो एक कर लेते हैं 3 into 3 वाला. Okay, let us take an example 2 3 4 1 2 4 5 3 1. Okay, ये हो गया. नाउ इसको अगर हम एज यूजुअल डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सो हो गया 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4. क्लियर. प्लस 4 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 5 into 2. Okay, now to solve this, so 2 into ये हो गया 2 1s are 2 minus 2 1s are 2 4 3 12 minus 3 into 1 into 1 minus 5 4 20. ये हो गया plus 4 into 3 1s are 3 minus 5 2 10. Okay, now ये हो गया 2 into 2 minus 12 equal to minus 10. Minus 3 into 1 minus 90 equal to minus 90, plus 4 into 3 minus 10 is equals to minus 7. Clear. Now 10 to the 20 minus 20, ये हो गया minus minus plus. Clear. Minus minus plus 19 3s are 57. Okay, ये हो गया plus minus minus 7 4 28. So what comes, ये हो गया माइनस में 2 वैल्यू हो गया माइनस 48 माइनस 20 माइनस 28 48 प्लस 57. Clear. So the value is 48 minus 48 plus 57. तो 5
7 to 9, ये हो गया +9. Okay, so the value is +9. Now what we do, now let us adding, now let us adding 2 times the elements, 2 times the elements, 2 times the elements of row 1, 2 times the elements of row 1 with, let me take row 3. ठीक है, रो 1 को अगर हम रो 3 के साथ लेंगे, क्लियर, तो क्या हो गया, नया वाला मैट्रिक्स क्या आएगा, नया डिटरमिनेंट क्या आएगा कि रो 1 तो एज यूजुअल रहेगा, है कि नहीं, ये रहेगा 2 3 4 ही रहेगा, ओनली रो 3 का ही चेंज होगा क्योंकि हमने रो 3 को इधर रिप्लेस किया है. ठीक है, सो 2 3 4, बाकी रो 2 का भी एज यूजुअल रहेगा 1 2 4. बाकी जो रो 3 का क्या आएगा, एडिंग 2 टाइम्स द एलिमेंट ऑफ रो 1. रो 1 का जो है, ठीक है, मतलब उसका मतलब 5 प्लस 2 इंटू 2, ये है 2 टाइम्स, क्लियर, 2 टाइम्स बोला है ना इधर, 2 टाइम्स, क्लियर, मतलब रो 1 में जो भी एलिमेंट्स है, क्लियर, उसमें 2 मल्टीपल करना है और उसको रो 3 के एलिमेंट के साथ ऐड करना है. ठीक है, सो 2 2 जा 4, है कि नहीं, 2 2 जा 4, ये था 3 प्लस 3 2 जा 6, ये क्या था 1 प्लस 4 2 जा 8. क्लियर, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या हो गया कि 5 4 ये हो गया 9 6 3 9, ये 8 1 9 हो गया, है कि नहीं, क्लियर, सो 9 9 9 हो गया, ये हो गया 9 9 9. ओके, चलो अभी इसको हम डिटरमिनेंट निकालते हैं. ओके, तो क्या गया, वैल्यू अनचेंज रहेगा. अभी देखो, लेट 2 into 9 minus 9 into 4 minus 3 into minus 3 into 1 into 9 minus 9 into 4 plus 4 into 1 into 9 minus 9 into 2. Okay, so 2 into क्या बचा 9 2 18 minus 9 4 36. Okay, minus 3 into 9 1 जा 9 minus 9 4 36 plus 4 into 9 1 जा 9 minus 9 2 18. Okay, so ये हो गया 2 into 18 minus 36 equal to 18, that is minus 18. Clear, minus 3 into 9 minus 36, clear, 9 minus 36, that comes 27 minus 27. Okay, minus 27. Okay, now plus 4 into 9 minus 18 is equal to minus 9. Clear, so ये हो गया minus 18 into 2 minus 36, ये हो गया minus minus plus 27 into 27 into 3, क्या हो गया, ये हो गया 81 प्लस ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 36. ओके, सो इधर है 36, ये है माइनस 36, सो माइनस 36 कितना हो गया 72 प्लस 81, दैट कम्स माइनस 9, सॉरी प्लस 9, प्लस 81 माइनस 72 इज इक्वल टू प्लस 9. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हो गया क्लैरिफाई 7th प्रॉपर्टी. ओके, नाउ
द लास्ट प्रॉपर्टी, चलो लास्ट वाला प्रॉपर्टी देखते हैं 8(1). ओके, that is, this is the last property. Okay, so what is that? If the element of any row or column, if the elements of any rows or columns of a determinant are multiplied in order, same order, ठीक है, ऑर्डर में जैसा है वैसे में, in order by the cofactor that we say Cij, है कि नहीं, जो बोलते थे Cij cofactor, the symbol is Cij, in order by the cofactors of the corresponding element of the corresponding elements corresponding element of any other row, of any other रोज और कलम, कोई भी एक रो और कलम का, ठीक है, कोई भी एक रो और कलम का हम कोफैक्टर निकालेंगे। देखो 6, 7, 8 सिमिलर है। 6 में हमने क्या किया कि बाहर से एक मल्टीपल लाए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 7 में क्या किया, बाहर से एक मल्टीप्लाई लाए, ठीक है, फिर उसको अपने जो रिमेनिंग एक रो और कलम के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको दूसरा रो और कॉलम के साथ एडिंग और सब्ट्रैक्ट किया। इसमें क्या करेंगे कि बाहर से कुछ नहीं लाना है, अपना जो है रो और कॉलम, उसी कोई भी एक रो और कॉलम में से कोफैक्टर निकालना है, फिर वो कोफैक्टर को कोई भी एक रिमेनिंग रो और कॉलम में मल्टीपल करना है, ठीक है। मल्टीपल करने से क्या हो गया, एनी रो और कॉलम, देन द sum of the product does obtain, जो आएगा sum of the product does obtained is 0, जो भी आएगा वैल्यू, ठीक है कि नहीं, मतलब वो जो नया वाला रो कॉलम है उसमें अगर हम उसको मल्टीपल करेंगे, फिर इसको अगर हम एडेड अप करेंगे, सम करेंगे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा कि 0 आएगा डेफिनेटली। ओके, क्लियर। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट 2 3 6 7, लेट एक 2 into 3 लिए 2 3 6 7। ओके, चलो इसमें डिटरमिनेंट तो नहीं निकालना है, हमें डिटरमिनेंट नहीं निकालना है, बस क्या करना है कि कोफैक्टर निकालना है कोई भी एक रो और कॉलम का, ठीक है। तो चलो लेट वी फाइंड द cofactors of the elements of column 1। column 1 का जो है एलिमेंट्स, उसका हमने अभी निकाला, लेट कोफैक्टर, तो क्या हो गया 2 का कोफैक्टर है कि नहीं, तो 2, सो द कोफैक्टर ऑफ व्हाट इज A11 है कि नहीं, वो A11 मतलब 2, दैट इज C11, एंड ये हो गया A21 मतलब 6 का, दैट इज C21। ओके, तो कॉलम का क्या है फॉर्मूला, -1 to the base 1 + 1, you get 2 + 1 multiplied by the minor of that element, clear। so 2, इधर 2 का माइनर क्या है 7, 6 का माइनर क्या है, the minor of 6 is 3, clear। so now what comes, ये हो गया -1 to the power 2 मतलब +1 into 7 is equal to 7। ये हो गया -2 पावर 3 मतलब -1 into 3 is equal to -3। ओके, 7 and -3। नाउ हमें क्या करना है कि वो जो ए के हिसाब से, ओके,
जो क्या करना है कि ये जो आया कोफैक्टर उसको कॉलम 1 से आया, कॉलम 2 के साथ इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, मल्टीपल करने के बाद वो जो सब एलिमेंट्स हैं उसका एडिशन करना है, सम अप करना है कि नहीं, सम अप करना है। सम करने के बाद क्या आएगा, 0, आंसर आएगा 0। क्लियर। नाउ व्हाट वी डू, नाउ मल्टीप्लाइंग the elements of column 2, because here we find the cofactor of column 1, तो उसको डेफिनेटली कॉलम 2 के साथ करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2 by the cofactors of the elements of column 1. Okay, column 1. Now summing up, okay, or we can say getting them total. Okay, total अगर करेंगे, getting them total we get, क्या हमको मिलेगा, क्या करेंगे, देखो कि देखो ये जो एलिमेंट था क्या था, 3, क्या करना है, देखो वेरी सिंपल, जो एलिमेंट है उसको उसके करस्पेंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीपल करो, फिर सबको एक साथ सम अप कर दो, तो 3 इंटू उसके करस्पेंडिंग एलिमेंट है 2 का कोफैक्टर कितना आया, 2 का कोफैक्टर आया 7, तो इंटू 7 प्लस ये क्या बचा 7 इंटू उसका करस्पेंडिंग एलिमेंट क्या है 6 का कोफैक्टर कितना है -3, तो कर दो, ये हो गया क्या 7 3 21 -21, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में क्या करना है। देन चलो एक लास्ट में 3 इंटू 3 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लैरिफाई और करने के लिए। ओके चलो, लेट अस टेक 102 314 एंड 521। ओके चलो, ये हो गया अपना एक डिटर्मिनेंट। क्लियर। नाउ लेट अस डू व्हाट, टू फाइंड, let we find the cofactor of row 2. Okay, finding the cofactors of row 2, row 2 का कोफैक्टर निकालते हैं। row 2 मतलब A21, ठीक है, A21 that is 3 का that is C21 है कि नहीं, एंड A22 मतलब 1 का that is C22, ओके, एंड A23 मतलब 4 का कितना है that is C23। क्लियर। तो चलो ये तीनों का कोफैक्टर निकालते हैं। क्या हो गया, -1 इंटू 2 + 1 इंटू, अभी हमें 3 का निकालो माइनर क्या है, 3 का माइनर क्या है, वेरी सिंपल, ये एलिमिनेट कर दिया, ये हो गया। चलो देखो स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, 0 इंटू 1 माइनस, ये हो गया ना, ये चला गया, ये रो कॉलम, ये दान का क्या बता, 0 इंटू 1 -2 इंटू 2 -2 इंटू 2। क्लियर। सो दैट कम्स -1 टू द पावर 3 मतलब -1 इंटू, ये हो गया 0 -4। क्लियर। सो -1 -4 इज इक्वल टू +4। क्लियर, +4। देन ये हो गया -1 टू द पावर 2 + 2। क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड का, तो चलो ये छोड़ो, बाकी बचा कितना, 1 इंटू 1 -5 इंटू 2। ओके, सो क्या बचा, -1 टू द पावर 4 मतलब +1 इंटू, ये हो गया 1 -5 2 = 10, सो हो गया -9। So that come minus plus minus -9। क्लियर। नाउ ये हो गया -1 टू द पावर 2 + 3।
इंटू ये हो गया 4, तो उसको लगे तो 1 इंटू 1, 1 इंटू सॉरी ये 4 गया, ठीक है। सो 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 0, क्लियर। सो क्या बता, -1 टू द पावर 3 + 2 5, मतलब -1 इंटू ये हो गया 2, 2 1 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, सो बचा है -2। तो 4 -9 एंड -2, क्लियर। ये आ गया 3 कोफैक्टर ऑफ रो 2, क्लियर। नाउ अभी हमें क्या करना है कि कोई भी ले लो, रो 2 को हमने लिया, ठीक है। तो रो 1 के साथ और रो 3 के साथ अगर हम निकालेंगे उसका वैल्यू, क्लियर, तो क्या होगा कि वैल्यू डेफिनेटली 0 ही आएगा, ठीक है। सो क्या करना है, देखो, नाउ मल्टीप्लाइंग the elements of, let row 1, multiplying the elements of row 1 with the cofactors of the elements of row 2, क्लियर। रो 2 का जो एलिमेंट है उसका जो कोफैक्टर है उसके साथ हमने रो 1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन गेटिंग देम टोटल वी गेट, क्या मिलेगा हमें, चलो रो 1 का जो है वैल्यू ये है, पहला है 1 इंटू, क्लियर, 1 इंटू 3, ठीक है। 3 का जो है कोफैक्टर, ठीक है, 3 का जो कोफैक्टर है कितना है, 4 है कि नहीं। क्या करना है, देखो, 1 इंटू दिस, 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर है 4, प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 दैट इज -9, प्लस 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 4 दैट इज -2, 2 इंटू -2, क्लियर। अभी क्या हो गया, 4 1 जा 4, प्लस ये हो गया 0, ये हो गया -4 दैट इज इक्वल्स टू 0, प्लस 4 -4 0, क्लियर। नाउ चलो और एक भी ले लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ रो 3 with the cofactors of the elements of row 2, okay, getting them total we get, क्या मिलेगा कि देखो रो 2 में क्या है, ये हो गया 5 इंटू उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 का, तो इंटू 4, प्लस 2 इंटू 1 का कोफैक्टर कितना है, -9, प्लस 1 इंटू उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 का है -2, सो क्या होता है 5 4 20, प्लस 9 2, ये हो गया प्लस माइनस हो गया, -9 2 18, क्लियर। ये हो गया 2 1 2 -2, क्लियर। सो +20 -20 इज इक्वल्स टू 0, ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। आए समझ में कि अगर हम अपने जो है अपने पास डिटर्मिनेंट उसके कोई भी एक रो और कॉलम को लेंगे, उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे, वो कोफैक्टर का वैल्यू को किसी भी एक रो और कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर इसका अगर सम अप करेंगे तो उसका वैल्यू डेफिनेटली 0 ही आएगा, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज को हम कभी भी डिटर्मिनेंट निकाल के टाइम पे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, क्लियर, हम देखेंगे बाद में इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, ओके, क्लियर। सो जब भी हम मैट्रिक्स में जाएंगे, मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए जाएंगे, वो टाइम पे भी हम ये प्रॉपर्टीज को इजीली यूज कर सकते हैं टू अराइव एट ए सॉल्यूशन, क्लियर। सो फॉर टुडे द क्लास इज कंप्लीट,
that we completed the determinants of the properties of determinant. Clear? So बाकी बच्चा स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का कि बाकी जो दूसरा टॉपिक्स भी हैं बहुत सारे, वो हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. क्लियर? तो प्लीज स्टे ट्यून, क्लासेस को अच्छे तरह से देखिए. कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. ठीक है? सो विद दिस वी सम अप द क्लास. थैंक यू ऑल for your patience and for your kind presence. Okay, thank you.